acid, base and salts. Some important definitions. Indicators. What are the indicators? There are the substance which give different color in acidic and basic solution. Example litmus, turmeric, फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें डिफरेंट कलर देते हैं इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, फिनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज. ये सारे क्या हैं? इंडिकेटर्स है. इनके थ्रू क्या आ जाता है? हमें प्रोडक्ट का पता चल जाता है कि ये एंड पॉइंट बता देते हैं थ्रू रिएक्शन. इंडिकेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट है olfactory indicators. There are some substance whose odor change in acidic or basic medium which are known as olfactory indicator. Those are the olfactory indicators which change odors. Next is acids. Those compounds which have one or more hydrogen atoms which give hydrogen or hydronium ion in aqueous solution are called acids. These are source in taste. Acids are source in taste. Next is ionization. It is a process in which a substance produce ion in water ionization. In which substance produce ions in water ionization is called ionization. Basicity of acid. Basicity of acid is the number of hydronium ion. Produced when one molecule of acid gets completely ionized. When one molecule of acid get completely ionized in aqueous solution. Next is base. Base are those compounds which are metal oxide or metal hydroxide or aqueous ammonia, and these react with hydronium ion. Hydronium ion is H3O positive of acids to produce salt and water. Base are those which reacts with hydronium ion and produce salts and water. Neutralization due to reaction between acid and base, salt and water are produced, in which salts and water are produced by the reaction of acid and base. With the reaction of acid and base, salts and water are produced is called neutralization. Next is alkali. Those basic hydrolysis which on dissolving in water form hydroxyl ion और alkali. जो हमें हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो alkali होते हैं. Universal indicator. What are the universal indicators? It is a mixture of various organic substance which show different color with solution having different pH values. Dissociation. When a molecule of ionic compound dissociate into two or more atom or ions, this is called dissociation. जब molecules हमारे टूट जाते हैं two molecules में और more atom या फिर ions में, तो उसको हम dissociation process बोलते हैं. Chemical dissociation, a reaction in which molecule of compound break into atom or ion is called chemical decomposition रिएक्शन. इसी तरह से जो केमिकल में होती है उसको हम केमिकल डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर which is present in crystallization of crystal is called water of crystallization. जो वो वाटर जो कि प्रेजेंट हो इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि FeSO4.7H2O या फिर Al2O3.2H2O. What is effervescence? Effervescence, the process of release of crystalline water from hydrated salt into air is called effervescence. जब रिलीज होता है क्रिस्टलाइन वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू द एयर, उसको हम मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस
पर यूनिट वॉल्यूम बिकम लेस, दिस इज कॉल्ड डिल्यूशन। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, जैसे कि H2SO4 है, ठीक है, ऑन मिक्सिंग एसिड इन अ वाटर, कोई भी एसिड को हम वाटर में या फिर बेस को इन अ वाटर में डालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बिकम लेस, उनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो उसको हम डिल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई रिएक्शंस में हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, हमें डिल्यूट एसिड चाहिए होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेसी डिक्रीज हो जाती है और डिल्यूट हो जाता है, ठीक है। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस होती है सोडियम क्लोराइड की, उसको हम बोलते हैं क्लोरो टेस्ट ट्यूब। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, द अदर टू कंटेन अ एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन वन only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? आप each टेस्ट ट्यूब का कंटेंट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। आपने फाइंड कैसे करना है, आपको टेस्ट ट्यूब दी हुई है 3, उसमें क्या है, कंटेन है डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन, उनमें एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन है। आपको लिटमस पेपर दिया हुआ है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसमें एसिड प्रेजेंट है, किसमें बेस एंड किसमें वाटर, ठीक है। अगर तो द ट्यूब इन विच द रेड लिटमस पेपर टर्न पर्पल, अगर तो पर्पल हो जाता है तो दैट मीन्स दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। अगर द ट्यूब इन विच द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू कंटेन बेसिक, अगर तो ब्लू कलर देता है दैट मीन्स बेसिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि रेड लिटमस पेपर को बेस क्या कर देता है, टर्न कर देता है ब्लू कलर में, ठीक है, ये रिमेम्बर रखना। इसी तरह से द ट्यूब इन विच रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड कंटेन एसिडिक सोल्यूशन, अगर तो रेड ही रहता है तो दैट मीन्स उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए याद रखना, रेड लिटमस पेपर टर्न्स बेस ब्लू, इसी तरह से इनके ऑपोजिट होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिपॉजिट इन एसिडिक सोल्यूशन, जब हम उनको एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर का। ये आपको मैंने इसके लिए आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है 1 और 2, उनको भी जरूर देखना, उसके अंदर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है, आपको फिर पता चल जाएगा। इसी तरह से इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज 22 में आप देखोगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पेज के अंदर, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कूपर वेसल्स, उनको ब्रास एंड कूपर वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए कर्ड को, क्यों? द कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड, उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, जो कि क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ ऑफ ब्रास एंड कॉपर वेसल टू प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, जिसकी वजह से फिर वो टॉक्सिक हो सकता है, विच आर अनफिट फॉर कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, आप इसका कैसे टेस्ट करोगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये हमेशा ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, आपने रिमेम्बर करना है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड इट ऑलवेज प्रोड्यूस गैस विच इज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और उसकी एक हमने ये एग्जांपल ले ली है, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया HCl के साथ, MgCl2 और हाइड्रोजन रिलीज होता है, और जब भी हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ये एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो, पासिंग दिस गैस थ्रू अ सोप सोल्यूशन, इस गैस को हमने सोप सोल्यूशन से पास करवाना है, तो सोप बबल फिल्ड विद द गैस विल राइज अप, वो राइज अप होंगे, वो जो गैस है पानी के थ्रू बाहर निकलेगी। इफ द बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द गैस, अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर को गैस के नजदीक लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, वहां पे एक पॉप की साउंड आएगी, ठीक है, नियर द गैस द बबल विल बर्न विद द पॉप साउंड, तो उससे हमें कोई भी अगर किसी रिएक्शन में पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है दैट मीन दैट इज H2 गैस, तो ये आपने रिमेम्बर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका मेटल कंपाउंड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोड्यूस एफर्वेंस, द गैस इवॉल्व्ड
extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for a reaction if one of the compound formed calcium chloride. वो कौन से हमने फाइंड करना, वो कौन सा मेटल है जो HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, और वो अफर्वेंस भी दे रहा है, ठीक है। मैं इसकी अपने रिएक्शन फाइंड करनी है। HCl है, रिएक्ट करके Cl2 बना रहा है और इसके साथ अगर अफर्वेंस हो रही है दैट मीन्स उसमें CO2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है। CO2 गैस में अफर्वेंस आती है तो दैट मीन्स जो हमारा मेटल है वो होगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, CO2 एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in acidic solution while solution compound like alcohol, glucose do not show acidic character? ये बाकी क्यों acidic character show नहीं करते और ये acidic character क्यों show करते हैं in aqueous solution? aqueous solution किसका, जैसे कि वाटर। एक्वस सोल्यूशन कौन से होते हैं, वाटर के अंदर ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि जो H होता है ये डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर डिसोसिएट होके H+ आयन बनाते हैं। देखो HCl क्या करता है, ये देखो यहाँ पे आंसर सी का, HCl, HNO3 etc. undergo dissociation in water to give hydrogen ion which is H+ aqueous। इसको हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+ aqueous लिखना है आपने, हमेशा H+ aqueous, ठीक है, आयन एंड शो एसिडिक करेक्टर, क्योंकि ये इसमें डिसोसिएट हो जाता है तो ये एसिडिक करेक्टर देता है। जहां पे भी H हो, जिस कंपाउंड में भी H लगाओ दैट मीन्स वो क्या है, एसिड। अगर किसी कंपाउंड में जैसे NaOH है तो OH लगा हुआ है तो मतलब वो बेसिक हुआ, अगर तो H है तो दैट मीन्स एसिडिक है, क्योंकि H डिसोसिएट, ये अगर डिसोसिएट करेंगे तो H+ आयन निकलेगा और इसको डिसोसिएट करेंगे तो OH- आयन निकलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डोंट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ आयन, ये डिसोसिएट नहीं होते, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does aqueous solution of acidic कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, ये जो एसिडिक एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में हमारा हाइड्रोजन आयन निकलता था, ये क्या करता था, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और अदर इसके साथ जो अनायन होते हैं ना वाटर एक्वस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? HCl ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता? वो इसलिए नहीं चेंज करता क्योंकि जो ड्राई लिटमस पेपर होता है वो एक तो गीला होता है, सूखा नहीं होता। देखो, दिस इज बिकॉज ड्राई गैस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। एक तो वो जो ड्राई होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो वो डिसोसिएट नहीं होता। अगर वो HCl, ये देखो यहाँ पे अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ आयन ही नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा तो फिर हमें कलर कैसे आएगा, कलर हमें H+ आयन की वजह से आता है। तो अगर ये डिसोसिएट होके लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके हमें कलर ही नहीं दे पाएगा, तो फिर इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while diluting an acid, why is it recommended that the acid solution be added to water and not added to the acid? हमें पानी में एसिड डालना चाहिए लेकिन एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? इसका इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट मीन्स हीट इवॉल्व होगी। जब भी हीट इवॉल्व होगी तो इसका मतलब हमें ये ध्यान से करना पड़ेगा। अगर तो हमने एसिड में वाटर डाल दिया तो इससे एक्सप्लोजन भी हो सकती है और इससे हमें हमेशा ही ध्यान से करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज इफ द वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट में कॉज अ मिक्सचर टू स्प्लैश, इससे बीकर भी टूट सकता है एंड कॉज बर्निंग, और बर्निंग हो सकती है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ज्यादा हीटिंग की वजह से वो ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए हमने हमेशा ही वाटर में एसिड डालना है, ना कि एसिड में वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डिल्यूटेड? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? हमेशा डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज व्हेन द सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डिल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, how is concentration of hydroxyl ion affect when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide?
तब क्या होगा, व्हेन द एक्सेस ऑफ बेस इज डिजोल्व इन सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सल सोडियम हाइड्रोक्साइड, concentration of OH ion increases. हमेशा क्या होगा, OH ion increases होगा. pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution is more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? इनमें से कौन सा acidic होगा और कौन सा basic होगा? एक solution के पास आपको 6 की वैल्यू दी हुई है और दूसरी की 8 वैल्यू दी हुई है, तो which one is more acidic? सोल्यूशन नंबर ए इज एसिडिक एंड बी क्या होगा, बी होगा हमारा बेसिक. तो आंसर में ये एक्सप्लेन किया हुआ है. इन सोल्यूशन ए 10⁻, उसको हमने बच्चे मोलर कंसंट्रेशन में दिए हैं, इसलिए हमने 10⁻, आयंस में कन्वर्ट करके 10⁻6 कर दिया है. तो बी के सिलेक्शन को 10⁸ मोल्स में कर लिए हैं हमने. 10, तो इसकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी. देयरफॉर द सोल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. सोल्यूशन ए इज एसिडिक, बी इज बेसिक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? H plus ion क्या इफेक्ट डालता है? अगर तो इसका अभी 3 वेज में है, अगर तो इसका लेस देन 10⁻7 चला गया तो ये ग्रेटर देन 10⁻7 चला गया, दैट मीन ये बेसिक होगा, 7 से वैल्यू ज्यादा होगी. अगर तो 7 से कम लेस देन वैल्यू चलेगी तो एसिडिक होगा. अगर इक्वल टू होगी तो दैट मीन्स न्यूट्रल होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो. Do basic solution also have H plus ion? If yes, then why are these basic? अगर तो H plus ion do basic होता है, अगर yes तो कैसे होता है? क्या बेस सोल्यूशन में H प्लस आयन होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? बेसिक सोल्यूशन आल्सो कंटेन H प्लस आयन, बट इन बेसिक सोल्यूशन जो H की वैल्यू होती है इज लेस देन एंड OH की वैल्यू इज ग्रेटर देन होती है. सिंस द OH इज मोर देन द H की वैल्यू, जो OH की वैल्यू है मुझे ज्यादा होगी H प्लस एक्यूस की वैल्यू से. हैंस दीज आर बेसिक सोल्यूशन. तो ये एक तरह के बेसिक सोल्यूशन में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं H plus ion. Under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with quick lime and or slaked lime or calcium chalk calcium carbonate? कौन सी कंडीशन में स्लेक लाइम और कैल्शियम लाइम को ये ट्रीट करेंगे? इफ पीएच ऑफ सॉइल इज लेस देन 7, अगर 7 से कम होगी तो ये एसिडिक बन जाएगी. द फॉर्मल विल ट्रीट द सॉइल विद क्विक लैम, स्लेक लैम एंड चौक. इन तीनों को फिर वो ट्रीट करेगा. वो पूछ रहा था अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल इफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम. अगर कौन सी कंडीशन में इन तीनों को वो ट्रीट करेगा? जब इनकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी तब ये ट्रीट करेगा. नेक्स्ट देखो पेज नंबर 33 का हम अभी करेंगे. 33 के लिए क्वेश्चंस हैं हमारे. फर्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCl2? कॉमन नेम इसका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट है यहाँ पे देखो. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग द क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर. कौन सा कंपाउंड देता है यील्ड? इसका कंपाउंड देता है ड्राई सिल्क लेम देता है. नेक्स्ट देखो. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. कौन सा सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए यूज होता है केमिकल? वॉशिंग सोडा यूज होता है. नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? NaHCO3. CO3 ये होता है सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसमें H लगा हुआ. NaHCO3 इज हीटेड, गिव अ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन. इसकी इक्वेशन भी देनी है. इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट. ये देखो NaOH को हमने हीट किया तो Na2CO3 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा. इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है. ठीक है. और इनके नीचे आपने लेबलिंग भी कर देनी है अच्छी तरह से. नेक्स्ट देखो.
राइट अ इक्वेशन टू शो अ रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर में आपने रिएक्शन दिखानी है, ठीक है। ये आपके यहाँ आप तो यहाँ से भी ले सकते हो अगर आपने रिएक्शन करनी है। ये देखो आपके बुक के ऊपर एकदम ये रिएक्शन आपने बता दी है, चाहे ये लिखनी है ये लिख लेना, चाहे जो मैंने आपको सेंड किया है यहाँ से कर लेना। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O गिविंग राइज टू CaSO4 डॉट 2 H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ये आपने लर्न करना है। CaSO4 ये पूरा हाफ H2O ये पूरा लर्न करोगे बच्चे इसको यहाँ तक, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा। इसी तरह से ये जिप्सम का है CaSO4 डॉट 2 H2O, आपने ये पूरा का पूरा लर्न करना है, फिर ही आपका ये प्रॉपरली होगा। आपने पूरी ये इक्वेशन देनी है। देखो अगर हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, 3/2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो इनको ऐड अप करोगे तो कितने बन गए, कितने मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए, 2 आ गए ना, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो पहले हाफ थे, हाफ प्लस 3/2, इन हाफ प्लस 3/2 को अगर आप वो करोगे ऐड अप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/2। 4/2 कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 2 मोलिक्यूल्स, तो वही तो लिखे 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर बच गए, ठीक है। इनका एलसीएम लिया है, कुछ भी नहीं किया, तो फिर एलसीएम लिख के इसका आंसर दे दिया है, ठीक है।